Good morning, student. Today we will start chapter number 1, number system, exercise 1.3. In this exercise there are two topics about terminating terms and non-terminating terms. What are the terminating terms? That is when the decimal expansion shall will be terminate. Terminate means at a end. For example, when you divide 1 by 5, then it becomes 0.2. That is, it is terminate at a after 1 point, after 2 point, after a decimal. Okay, it is a terminate. Otherwise, it is called a non-terminate. For example, 2 upon 3. So it becomes 0.66666. It is a non-terminating and non-recurring terms. Is it clear? Now, in the first question, write down the decimal expansions from form and say what kind of expansions each has. That means you have to firstly convert the given following ratios, fractions into the decimal form and tell about that they are terminate or non-terminate. So first question is that 36 by 100. So we know that अगर 100 होता तो सीधा डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, that is equal to 0.36. It is terminate. Okay. Similarly, बेटा, when you divide 1 by 11, 1 is divided by 11. 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो, look at 1 11 पे 1 नहीं जाता, take 0 at decimal and 0. 10 again नहीं जाएगा, 0. So 800 9 99. Okay, so write 100 minus 99 1 0. Because under a division you will write only single zero. Long division अगर स्क्वायर रूट होता तो वहाँ डबल जीरो ले सकते थे, बट ये डिवीजन मेथड, डिवीजन जो होती है उसमें हम क्या लेते हैं सिंगल सिंगल जीरो. तो 100 अगेन 0, दिस वन 9 100 दैट में सॉरी 99 बेटा 1 अगेन इट बिकम्स 090909. सो इट इज नॉट अ टर्मिनेट. दैट मींस ये एंड नहीं होगी किसी भी पॉइंट पे. एट द एंड बार यही आ जाएगा 0.90909. सो इट इज अ नॉन टर्मिनेट. Understand? So you do other parts, do yourself. I hope you understand 1 and 2 part. और एक बेसिकली आपको ये भी बता दूं, वेरी इजी वे है कि अगर मान लो हमारा डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल पड़ा है, देन वो हमारी जो रेशियो होगी, जो हमारे फ्रैक्शंस होगी, दैट मस्ट बी अ टर्मिनेट. कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मल्टीपल फैक्टर्स होंगे 2 या 5 की फॉर्म में होंगे, दैट्स नंबर्स आर टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट. अंडरस्टैंड? सो रेस्ट पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज वेरी वेरी इजी. इन सेकेंड क्वेश्चन you know that 1/7 is equal to, we have given that कि जो 1/7 की वैल्यू है बेटा, that is equal to 0.142857 की रेकरिंग है. that means it is again repeated. okay, तो 1/7 की वैल्यू ये है. can you predict the value of the expansion 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 without using a long division? दैट मीन्स डिवाइड नहीं करना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 1 को 11 से डिवाइड किया था. यू हैव टू हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ 1/7 कैलकुलेट द अनदर नेक्स्ट वैल्यूज 2/7, 3/7, 4/7, 5/7. सो वी नो दैट क्या कैन वी राइट 2/7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/7. यस और नो? ओके, तो हम इसको राइट ऐसे कर सकते हैं. 1/7 की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा? दिस इज 0.142857. सो मल्टीप्लाई 2 7s are yes 14, carry 1, 2 5s are 10, 10 or 1 11,
carry 1, 2 8s are 16, 17, carry 1, 2 2s are 4 or 1, 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2, that is this number. ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर हमने 3/7 की निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही सेम वैल्यू। ओके, 4 then 5 then 6। ओके, 7/7 तो we know that की वैल्यू होता है। अंडरस्टैंड? Now come to the question number 3, that is very important question. You have to express the following number, recurring number p upon q form। p upon q form means रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। अगर हमारे पास recurring numbers है, recurring number that means repeating decimal कि 6 बार मतलब that means when you any number divide it becomes 0.6666 is again repeated। Okay, so how to convert into the p upon q form? There are few steps that we have to follow। Okay बेटा, first of all आप क्या करना है, जो नंबर गिवन है लेट कर लेना है that is equal to 0.6। 6 को 1 टाइम लिख लो, 2 टाइम लिख लो, 3 टाइम लिख लो, 4 टाइम। Okay, now you will mark equation number 1। After that you will check that कि how many numbers are recurring, कितने numbers की recurring हो रही है, only 1। तो 1 की हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 की होगी तो 100, 3 की होगी तो 1000। दैट मीन यू हैव टू चेक द recurring ओनली। ये नहीं देखना कि आफ्टर डेसिमल कितने नंबर्स है, जस्ट यू हैव टू चेक दैट कि नंबर्स की जो कोई भी नंबर डेसिमल एक्सपेंशन है, हाउ मेनी नंबर्स आर recurring में, recurring फॉर्म में कितने नंबर्स आ रहे हैं, रिपीटिंग कितने हो रहे हैं, repeated। So there are only one number is recurring, so what can we do, multiply by 10 on both side। तो क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई, 10 की x से मल्टीप्लाई की, लेफ्ट साइड को भी करना है राइट साइड को भी, 10 को x से मल्टीप्लाई की 10x, जो राइट हैंड साइड में डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। सो दिस इज इक्वल टू 6.666। अंडरस्टैंड दिस स्टेप? नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस इक्वेशन, 10x minus 1x it becomes 9x। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट करनी है, राइट में से राइट। तो 6.66 में से 0.66 माइनस करोगे तो ओनली इट बिकम्स 6, बिकॉज 6.6666 0.6। डेसिमल को डेसिमल के नीचे 6 माइनस 0 6 जे 0 0 0, तो 6.6 डेसिमल 0 0 0 दैट मीन्स ओनली 6। आफ्टर डेसिमल अगर कोई नॉन जीरो नंबर हो, दैट मीन्स कोई 1 2 3 होता तो वी हैव टू राइट इट, अदरवाइज अगर 0 आ जाते तो कैन वी राइट ओनली नंबर। ओके, नो नीड टू राइट द आफ्टर डेसिमल 0। सो 9x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड 6/9। 6/9 अगर आप यहाँ छोड़ोगे तो भी आंसर ठीक है, अदरवाइज वी नो दैट कि 6 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है, 3। सो कैन वी divide it by both numbers on the same number, 3 2s are 6, 3 3s are 9। so the our p by q form is 2/3 कि when हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस आंसर इज 0.666। अंडरस्टैंड? ओके बच्चा, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द पार्ट 3। Now beta second part again 0.47, only 7 की recurring है, that is you can let x is equal to 0.4777। 47 में just 7। okay, now again 1, तो how many numbers are recur, only 1। again multiply by 10। ओके बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, इट बिकम्स 10x, डेसिमल इज शिफ्ट 4.7777। ओके, नाउ आफ्टर दैट क्या स्टेप था हमारा, सबट्रैक्ट।
1 from 2. So 10x minus 1x becomes 9x is equal to, subtracted 4.7777, 0.4777, 0 0 0, 7 minus 4 3, डेसिमल का डेसिमल 4.3. ठीक है, तो दिस इज 4.3. डेसिमल हटाया अपन क्या आ जाएगा बेटा 10. 9 is multiply divide, x is equal to 43 by 10 multiply 9 to become 43 by 9. This is our answer. Understand? जो बेटा इसका थर्ड पार्ट है that is you do have to do yourself, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपने खुद करना है. that is very very easy. Okay, now we will do question number 5. Now beta question number 5, what are the maximum number of digit B repeating blocks of the digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division and to check your answer. That means what can you do कि आपने क्या करना है बेटा 1 को 17 से डिवाइड करना है. डिवाइड करके ये बताना है कि आफ्टर डेसिमल के बाद कितने डिजिट बाद वो नंबर सेम आएगा. दैट मीन्स 1 को 17 से डिवाइड करना है तो पहले क्या आएगा 0, डेसिमल 0 लिया, 0 अगेन, फिर अगेन 0, 100 आ गया. तो 17 5 से क्या आता है बेटा हमारे पास 85. तो 85 आ गया बेटा 150 150. तो 17 के टेबल पे ये देखो 150 से नीचे कौन सा नंबर जाएगा 8. दैट इज इक्वल टू 17 8 सा कितना होता है बेटा हमारे पास 136. अगेन सब्ट्रैक्टेड 14, अगेन 0, अगेन 8 में जाएगा 136. अगेन बेटा माइनस करोगे 8 is 4 0, 72 सा 34, 6 0, 17 3 सा 51, 9 0 7. ठीक है बच्चा. 5 सा 85. ऐसे आपने बेटा डिवाइड कर. ठीक है, तो आफ्टर कितने डिजिट बाद ये आपकी जो है डिवीजन जो है रिपीट होगी आफ्टर 16 डेसिमल. दैट मीन्स इस डिवीजन को आपको कितने डेसिमल आफ्टर डेसिमल कितने तक मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7. दैट मीन्स ये कितने डिजिट तक जाएगी बेटा अप टू 16 डिजिट. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक. दैट मीन्स कितने डिजिट्स आते हैं आफ्टर डिवीजन. देयर आर 16 डिजिट. सो यू हैव टू प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप 5 0. ठीक है बेटा 50 आ गया, अगेन 2 पे जाएगा ये 34 16 16 आ गया 160. So you have to proceed this step one by one up to 16 digit. After 16 digit क्या होगा आपका जो रिमाइंडर है that becomes equal to dividend that is a 1. जब आपने मेन क्या करना है डिवीजन 1 की 17 तक कब करनी है जब तक आपका रिमाइंडर डिविडेंड के इक्वल नहीं हो जाता. दैट मीन्स 1 नहीं आ जाता. जब रिमाइंडर आपका 1 बच गया लास्ट में then you have to check that कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट आए. ठीक है, तो ये आ गया हमारे 16 डिजिट आएंगे when you divide it. Understand? So you have to follow this steps. ये आपने जो डिवीजन है नोटबुक पे भी शो करनी है सारी, और एग्जाम में भी अगर आ गया ये क्वेश्चन तो भी शो करनी है because you have to given that question कि perform the division also. Understand? Now come to the question number 6. Now beta question number 6, look at the several example of rational number in the form of p upon q. तो हमने क्या करना है आपने कुछ की एग्जांपल्स लेनी है कोई भी रैशनल नंबर्स की. फॉर एग्जांपल 1/2 2/3 4/5 7/10 like that. Where in p and q
who are the integer with no common factor other than 1, that means common factor is 1, that means 1 और 2 में common क्या है 1, that means they are prime co-prime to each other, that means 2 और 3, 4 और 5, 7 और 10, they are co-prime number other than, इनका common factor क्या है 1. are terminating decimal representation, terminating that means वो आफ्टर अ डेसिमल हो टर्मिनेट होना चाहिए, दैट मीन्स उनका एंड पॉइंट होना चाहिए, दैट मीन्स लाइक जैसे मैंने आपको बताया था एंडिंग पॉइंट. कैन यू गेस दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, क्या होगी प्रॉपर्टी, कैसे सेटिस्फाइड होगी, अभी मैंने बताया था ना आपको कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस एंड क्यू मस्ट बी, क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 and 5, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए 2 and 5 के फॉर्म में होने चाहिए. दिस इज टर्मिनेट, यस. दिस इज टर्मिनेट, नो, बिकॉज डिनोमिनेटर में 3 पड़ा है, तो दिस इज नॉट अ टर्मिनेट. दिस इज टर्मिनेट, यस. दिस इज यस 2 5 के फॉर्म में पड़ा ना, क्योंकि 5 2 10, अगर 20 आ जाएगा तो भी यस ही आएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो 2 और 5 के मल्टीपल फैक्टर्स में होनी चाहिए, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट होगा. अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Write the 3 number whose decimal expansions are non-terminate and non-recurring. That means non-terminate and non-recurring. That means जो हमारे पास repeat नहीं हुई. So for example, root 2 is 0.414 up to so this. Okay. For another example, pi ले सकते हो. Pi is also non-terminate. Root 7 ले सकते हो. रूट 7 की वैल्यू कितनी होती है बेटा हमारे पास 2.64571 up to this. Okay. Now second last question. Find the 3 different irrational number between the rational number. तो 2 रैशनल नंबर के बिटवीन हमने इरेशनल नंबर पता करने हैं बेटा. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर 2 रैशनल नंबर है उनके बिटवीन इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर लाई करते हैं. अगर 2 इरेशनल नंबर है तो उसके बिटवीन इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर लाई करते हैं. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, पहले 5/7 को डिवाइड करना है एंड 9 को 11 से डिवाइड करना है. यू हैव टू डिवाइड ऑन योर नोटबुक. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/7, that is 0.714285. Okay, up to so. Similarly 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो this is equal to 0.818181. Is it clear? They are non-terminating terms. 5/7 है, 9/11 है. अभी हमने पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 का मल्टीपल होगा तो वो टर्मिनेट होता है. तो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं. इसके बिटवीन हमने क्या करने हैं, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. देखो 7 1 to 81 कितने नंबर्स लाई कर सकते हैं इनफाइनाइट मैनी, 0.71030034 अप टू सो. ठीक है बच्चा, तो ये लाई कर सकते हैं हमारे पास. 7 2 ले लो यहाँ, 714 0.760044 like that. 0.80100100. These are irrational numbers. You can write any 3 numbers. Understand? Now last question. Classify the rational or irrational number. You have to find that which numbers are rational, which are irrational. That means जो नंबर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं that are रैशनल, और जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते दैट आर इरेशनल. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज हैव अ परफेक्ट स्क्वायर, यस और नो? नो, बिकॉज इट इज अ
prime number, so it is called a irrational number. Square root of any prime number is always a irrational. Understand? Similarly बेटा square root of 225 का square root आपने किया हुआ है ना 8th क्लास में, तो क्या होता है 15, तो 15 को 15/1 लिख सकते हैं. Yes, so it is a rational number. Okay. Similarly बेटा third, fourth, they are, देखो थर्ड में क्या है 0.3796, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट हो रहा है तो रैशनल. लास्ट में क्या है रेकरिंग नंबर है, सेम एज इट इज हम थर्ड की तरह सॉल्व कर सकते हैं, सो इट इज आल्सो अ रैशनल नंबर. लास्ट वन इज 1.10001, these are irrational. Okay, so exercise is complete. I hope you understand all the questions. Thank you so much.